I think after a week and a half, I got a call from HR, and then she said, it's not a very good story, guys, आगे, so don't be surprised. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. So hi guys, welcome back again to yet another video. I hope you all are safe, and I'm in Jaipur and I'm sitting in my hotel. It's really beautiful. I mean, I have like मैं जब flight attendant थी तब मैं जयपुर आती थी, like बहुत बार आके गई हूँ, almost around 30-40 times or more than that, but I never got a layover. It's very surprising and I don't know why. Or anyway, so Jaipur is beautiful, guys. First thing, it's clean. I'm very surprised, like, and surprises are that I'm very proud that people are actually maintaining, you know, their place and their roads and everything. So it's just nice. Let me just show you the view of my room. Room is a little messy, but outside view is just perfect. Let me just show you. That's my view from the hotel. We are on the front side. So ये ना एक हवेली की तरह है, मतलब so you enter from there. You can see that that's the entrance. You come here. This is the garden area and back side. So this is my room. Quite messy but ignore it. और ये जो है ना, ये ऐसा एक पैलेस की तरह है और बीच में भी गार्डन है. So you can have breakfast. That's my camera. I'm recording from phone because मैं GoPro ना नहीं रख पा रही हूँ सही से उसका tripod. So yeah, that's the view. वहाँ पे कॉर्नर में एक बहुत प्यारी सी गणपति जी की मूर्ति है. And yeah, this is the seating area that they have. I just thought, why not make a video, sit down video, of course. I have time, I have good lighting. Why not make a video? So yeah, it is my Indigo cabin crew interview experience. ये काफ़ी टाइम हो गया था इंटरव्यू देके. आई हैड गिवन माई इंटरव्यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट डिडंट गेट टाइम, और लेट्स से टाइम तो था बट दिमाग में ही नहीं आया कि बैठ के बनाऊँ सही से. कुछ ना कुछ एक के ऊपर एक आता गया. सो या, so without any more further delay, let's just dive into our topic today. And today's topic, as I said, is my Indigo cabin crew interview experience. So yeah, as I mentioned earlier, I had given my interview in the month of August, 3rd of August, I remember. It was very spontaneous. Matlab, as you all know, I'm already working full time, but not as a cabin crew, but as an HR in one of the companies in Pune. And मैं ना वो realization जो hit हुआ मुझे कि नहीं अभी ना बस हो गया. I was really happy working as a crew वाला moment था. And then I saw Indigo's website. मैंने भी Indigo की website पे जाके देखा that they are hiring. Okay, so उन्होंने पहले की तरह hiring डाला था lead cabin crew ATR and Airbus. जो कैबिन क्रू नॉर्मल था वहाँ पे लीड का हायरिंग नहीं चल रहा था. बट आई सॉ लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स वो बिकमिंग लीड, जो मेरे बैच के थे, जो मेरे बैच के पहले के थे एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वॉज लाइक यार लेट्स ट्राई, बिकॉज मुझे ऑलरेडी 3 years का एक्सपीरियंस है. सो वाई नॉट, दे विल वेलकम क्रू. और बहुत से क्रू स्विच भी कर रहे थे इंडिगो से. सो आई थॉट, यू नो, लाइक आई वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट सिलेक्टेड. आई वॉज स्कैर्ड द मोमेंट all the rounds were getting done and stuff, but I was just like कि यार थोड़ी बहुत अश्योरिटी थी कि यार मैं इंडिगो की क्रू रह चुकी हूँ पहले. सो अगर मैं जाऊँगी वहाँ पे तो दे विल टेक मी, सो नो प्रॉब्लम. सो या, आई वेंट ऑन 3rd, नॉर्मल वॉक इन ही गई मैं लाइक दिस. सो आई एम गोना टेल यू द होल प्रोसेस, द राउंड्स, व्हाट हैपेंड, व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड ऑल दिस स्टफ. सो टाइमिंग तो 9 बजे का था आई थिंक, या आई एम नॉट श्योर. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी अगर मुझे मिला होगा तो. सो आई रीच देयर अराउंड 10 AM. सो पहले जाते ही ये पुणे में था, विमान नगर में हुआ था. पार्क एसटी करके होटल है विमान नगर में, देयर इट हैपेंड. सो इट वॉज ऑन द टॉप फ्लोर. वी वेंट देयर एंड वी ऑल वर सिटिंग देयर. ठीक है, हम लोग सब बैठे हुए थे. देन वन HR केम, आई थिंक दैट रिक्रूटिंग टीम से एक बंदा आया, वन सर came of course, and he said he gave us a paper. So I still remember जब मैं इंडिगो के फर्स्ट टाइम गई थी इंडिगो का इंटरव्यू देने, तभी भी सेम हुआ था. and fortunately I was the first one to write my name on that paper, and this time as well I went, क्योंकि मैं ऐसे नहीं था कि मैं सबसे पहले जाके बैठी थी. आई जस्ट वॉकड इन और बहुत सारी लाइक ऑलमोस्ट 30-40 गर्ल्स बैठी हुई थी ऑलरेडी. सो आई वेंट देयर एंड आई सैट ऑन द फर्स्ट रो बिकॉज नोबडी वाज सीटिंग देयर. And I wrote my name. I was the second one to write. And then so they asked us to write number 1 on your resume. So line wise, like
जो बंदा फर्स्ट सीट पे बैठा है शी विल राइट 1, जो सेकंड पे बैठा है शी विल राइट 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन. सो आई जस्ट रोट माई नंबर. आई वॉज सेकेंड नंबर पे. येस, आई वॉज सेकेंड नंबर पे. टोल्ड मी जस्ट राइट योर IGA, लाइक जो आपका मेरा पहले का एम्प्लॉय कोड रहता है. IGA वी कॉल इट IGA. आई डोंट नो द फुल फॉर्म, बट IGA लिखा मैंने, एम्प्लॉय कोड लिखा, एंड आई जस्ट सबमिटेड माई रेज्यूमे. देन एक एक करके राउंड्स हुए. सो आई वॉज, एज आई सेड, अमंग्स फर्स्ट 10. सो जब सबका नाम लिख के हो गया ऑन देयर रेज्यूमेस, वी सबमिटेड आवर रेज्यूमेस टू द recruiting team, and then they called us. So first round was 10 girls, and the interview was sitting, and she just asked us questions. So they asked us to introduce. Of course, introduction was one of the question, and the second question was your best memory on a vacation, or yeah, that we removed our mask and we just explained. And in that round, guys, they check how you speak, your vocabulary, your communication, and if you are fumbling or if you're like stiff while talking, or if you're smiling and all of that. So always, like I'm talking right now, I'm smiling and speaking. That's how you are supposed to give this kinds of round, because all they look for is how you speak and how you present yourself. And यहाँ पे अगर आप गलत इंग्लिश भी बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम गलत नहीं, दैट इट इज़ द टाइम, मतलब समझ रहे हो ना, गलत लाइक ग्रामेटिकली रॉन्ग इंग्लिश बहुत बोली तो दे विल नॉट टेक, बिकॉज ऑफकोर्स कैबिन क्रू का वन ऑफ द USP और एस्पेक्ट इज टू स्पीक in English and Hindi. So if you are speaking थोड़ा फार टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश, it's not a problem, क्योंकि ट्रेनिंग में कवर अप हो जाता है, उतना तो आप सीख ही जाते हो, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं मोस्टली, एंड इट इज़ एडवाइज दैट यू स्पीक इन इंग्लिश मोर ऑफन सो दैट यू गेट यूज टू इट. इट्स नॉट लाइक कुछ रूल है दैट इंग्लिश में ही बात करना है. इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आपको एक हैबिट लग जाए उसके लिए. सो वो राउंड होने के बाद बहुत सारी लड़कियां उसमें से रिजेक्ट हो गई. सो इंटरव्यूअर वहाँ पे बैठा है कोई रीज़न के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंटरव्यूअर पे आप पर पर्सनल ग्रज है. आई एम नॉट टेकिंग इन दैट एंगल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, फ्यू गर्ल्स टेक इट वेरी पर्सनली कि ये इंटरव्यू को मैं अच्छी नहीं लगती, या फिर इसको कुछ मेरे साथ दुश्मनी है वगैरह वगैरह. सो इट्स नॉट लाइक दैट. ये मैंने बहुत सुना है दैट गर्ल्स टेक इट पर्सनली. सो डू नॉट टेक इट, लेडीज़ और मैन हुएवर, लाइक अगर आप दूसरी एयरलाइन में जा रहे हो जहाँ पे मेल हायरिंग हो रही है, दे डोंट नो यू गाइज एंड यू डोंट नो देम. सो पर्सनल ग्रज की कोई बात ही नहीं आती है. इट्स जस्ट दैट एवरीबडी हैज़ सम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स ऑल द टाइम. इवन मी, even though I have experience in this field, कल को अगर मैं जाती हूँ, still I don't know so many things. And of course the interviewer also doesn't know anything anything नहीं, they do not know everything. Okay, they are also in learning curve, but they are in that particular profession for a reason and for a immense amount of time. That's why they are able to जांच पड़ताल की ये बंदा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या फिर उसको थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए एंड सीख लेना चाहिए. सो इट्स लाइक दैट. या इन दैट राउंड फ्यू गर्ल्स गॉट आउट एंड आई वॉज ऑफकोर्स, एक एक्सपीरियंस बंदे को ना एडवांटेज रहता है हमेशा, एंड मैंने 3 साल काम किया था, तो I was not, I was really sure that they will not reject me, and that's what happened because I was able to speak nicely and present myself nicely. So yeah, ये राउंड होने के बाद we all came out. उसके बाद हमारा हुआ मेडिकल राउंड. इन मेडिकल राउंड मतलब मेडिकल चेक बोलते हैं. दिस इज़ वेरी फर्स्ट लेवल और ग्राउंड लेवल मेडिकल चेक आई वुड से. वी ऑल वेंट आउट. काफ़ी देर रुक गए हम क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आई थी उस दिन. आई थिंक ऑलमोस्ट 200-300 गर्ल्स वर देयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई डिडंट रियली काउंट, बट या मोस्टली उतनी लड़कियाँ आई थी. एंड टाइम कुछ 12 या 1 बजे तक था, बट लॉट ऑफ गर्ल्स वॉकड इन उसके बाद भी, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा था, है ना. एंड देन वी वेंट इन फॉर आवर मेडिकल्स. इन मेडिकल्स तब हुआ बॉडी चेक पूरा एंटायर. स्किन टेस्ट होता है, वहाँ पे आपके स्कार्स और टैटूज चेक किए जाते हैं. और इंडिगो का यूनिफॉर्म इधर तक रहता है, स्कर्ट और पैर. बट दिस टाइम दे आस्क्ड अस टू रिमूव आवर स्टॉकिंग्स. लिटरली मतलब जो लड़कियाँ स्कर्ट पहन के आई थी, बहुत सी लड़कियाँ थी जो बिना स्टॉकिंग्स की आई थी, ऐसे ही स्कर्ट पहन के आई थी. तो इट्स जस्ट माई एडवाइस, ठीक है. if you wish not to wear a stocking, do not wear it, but I feel you must wear a stocking if you're wearing a skirt, because that is one of any airlines dress code. So
यू शुड ऑल्सो शो देम दैट आपको पता है कि स्कर्ट के नीचे स्टॉकिंग पहनी जाती है. सो डू वेयर इट, डू नॉट मिस ऑन स्टॉकिंग्स इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक. सो हमारा मेडिकल्स हुआ, उसमें हमको स्टॉकिंग्स निकाल के सारा पैर चेक किया उन्होंने. उसके बाद हमारा हाइट वेट हुआ, दे चेक्ड आवर हाइट उनके इस पे मेजरमेंट इक्विपमेंट पे, एंड देन दे चेक्ड आवर वेट ऑफ कोर्स. देन दे चेक्ड आवर आई. वहाँ पे उन्होंने जैसे आई चश्मा जब आप लगाने जाते हो या फिर आप चश्मे का ये नंबर चेक कराने जाते हो, दैट दे प्लेस दिस चार्ट वेयर ऑल दी अल्फ़ाबेट्स आर रिटर्न फ्रॉम स्मॉल साइज टिल बिग साइज. सो वो चेक किया गया. देन हमारा कलर ब्लाइंड का टेस्ट हुआ. एक नोटबुक थी, वहाँ पे कुछ फिगर्स थे, नंबर्स थे और दूसरा कलर था, तो हमको नंबर बताना था और कलर बताना था. तो दैट इज़ कलर ब्लाइंड टेस्ट. यू कैन चेक इट ऑन गूगल अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, और अदरवाइज आई पुट अ स्क्रीनशॉट कलर ब्लाइंड चेक का एक पिक्चर और समथिंग लाइक दैट. और उसके बाद हमको फॉर्म भरवाया गया, लाइक just a declaration form if you have any disease, if you have any past history, फलाना ढिमकाना and all that stuff. और वो होने के बाद if you have any scar or tattoo, वो बोलते हैं वहीं से चले जाओ, you do not need to give any interview because you are not eligible anyway. Either you get rid of that scar or tattoo if you have, or you cannot become a cabin crew in that airline because उन्होंने वहाँ पे straight forward आपको reject कर दिया. So luckily I got through because I don't have any visible tattoo or visible scar mark. It's not like आप पे होना ही नहीं चाहिए tattoo. अगर हुआ hidden जगह पे tattoo है तो कोई problem नहीं है, that's not a problem. So yeah, this thing happened and then I was moved on to the next round. So our next round was of course communication round. और 10-10 लड़कियों को बुलाया आफ्टर सो मच ऑफ वेट. मतलब मेरे पर्सनल राउंड में और पर्सनल जो फर्स्ट राउंड था और जो मेडिकल राउंड था उसके बीच में 20-30 मिनट्स का टाइम था. बट जो कम्युनिकेशन राउंड और मेडिकल राउंड के बीच का टाइम था वो ऑलमोस्ट 45 to 1 hour था. ठीक है, तो कम्युनिकेशन में द कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट टीम वॉज नॉट प्रेजेंट, सो हमारा ऑनलाइन हुआ. सो अगेन 10 लड़कियां बैठी थी और टेबल पे लैपटॉप रखा था एंड वहाँ से हमको बात करनी थी. सो वी वेंट देयर एंड द HR और वॉट एवर कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर वॉज सिटिंग एंड शी जस्ट आस्क्ड मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. और उसमें से ही उसने पूछा, तो मैंने बोला आई एम फ्रॉम पुणे. सो उसने बोला पुणे में टेल मी अबाउट पार्टी प्लेसेस इन पुणे और हाउ इज़ द पार्टी एनवायरनमेंट इन पुणे, वो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था. सो आई जस्ट स्पोक अबाउट इट. एंड यहाँ पे भी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है गाइस. एक्यूरेट लुक एट माई फेस, यू डोंट हैव टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन because they check your communication, they don't check if you are क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट और इफ़ यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इट्स नॉट any UPSC MPSC exam. It's just basic communication round wherein you have to speak and you have to talk about something. In that they check your communication, of course. That's why it's a communication round है ना. तो काफ़ी लड़कियाँ आई थिंक उस राउंड में से दो ही लड़कियाँ बाहर निकली क्योंकि इन माई बैच लाइक इन माई स्लॉट द गर्ल्स वर क्वाइट talkative and they were speaking very well. So कुछ निकले नहीं बाहर उसमें से. तो हो गया of course I got through communication यार, because after flying for 3 years and being with people who are speaking very well, आप भी हैबिट डेवलप कर लेते हो. और मैं myself I still watch English series wherein I can improve my English more. I'm not saying I speak accurate English or I speak correct English. Is that it's good to update yourself all the time and it's good to keep that habit. So that is the reason why I got through that round as well, luckily. And वो भी round था. And after that उसके round के बाद we got forward to the last round which was HR round. सो या आफ्टर अगेन बिग वेट, मतलब आई थिंक कम्युनिकेशन राउंड के बाद उन्होंने हमको ब्रेक दिया था. आई डोंट रिमेंबर लंच ब्रेक कब हुआ था, या आई थिंक तभी हुआ था. एंड वो भी बहुत बड़ा बैच लंबा था. मतलब मेरा ना, मुझे लगता है मैं 10 बजे गई, मेरा 2 या 1-2 बजे तक हो जाना चाहिए था. बट अगेन इट्स नॉट इन माई हैंड. वो एक एक करके फिनिश कर रहे थे. सो आई गॉट थ्रू HR राउंड. लास्ट तक आई थिंक 5
4.5 हो गए थे. येस करेक्ट. इट वॉज द लास्ट राउंड. उसमें भी तब मेरी बेस मैनेजर थी जो पुणे में, शी इज़ अ बेस मैनेजर, एंड दैट गाय, द रिक्रूटमेंट टीम वाला गाय, एंड ही वॉज नॉट HR, आई थिंक. येस, ही वॉज नॉट HR, दैट गाय हु केम, एंड देन वी वर कॉल्ड, और जो लड़कियां सिलेक्ट नहीं हो पाई उनको भेज रहे थे. ठीक है, सो हम सबको साथ में बुलाया, 10 लोगों को सब पे साथ बुलाया, एंड वहाँ पे वो लोग बता रहे थे इफ़ यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड. सो आई वेंट इन, माई नेम गॉट कॉल्ड. दिस टाइम सब एक साथ नहीं गए थे, एक एक करके ही बुला रहे थे. एंड देन आई वेंट इन एंड दे सेड congratulations, एंड द बेस्ट थिंग दैट दे सेड इज welcome back home. So that was the best line. I felt so happy. I almost had tears in my eyes, and my base manager, she said that, you know, she spoke good things about me because I had been with her for 2 years in base as flying under her as in under her guidance. She was a base manager, of course. And then I also spoke only about her because she was the main reason I was in Pune in the first place. After I lost my father, I came to Pune, and then she took very nice care of me. I'm really, really grateful to her, and I'm never ever going to, you know, forget her in my life, and I still have that gratitude, respect. मतलब मैं बैठ गई ना उनके बारे में बात करना, I will talk forever and ever. So it was really good. Then she said, I told her that, you know, thank you so much for this opportunity. ये वो सब हुआ, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं थोड़ी सी ओवरवेट हो गई हूँ गाइस. अभी तो बहुत हो गई हूँ, बट मेरा वेट थोड़ा लाइक 300 ग्राम ज़्यादा था, और उन्होंने गलती से 3 kg पड़ा. So this मानसी, you are very, very welcome, but you need to reduce weight. I hope you are aware of that. It's a lot. So I said, no sir, it's just 300 grams. I can, you know, reduce it अभी घर जाके भी, क्योंकि some morning I have not eaten anything and I'm just sitting, so मेरा body bloat हो गया. So वो 300 kg, so leave it. So it was like kind of funny moment, but for you guys it may be pathetic, but हम लोग सब हंस रहे थे तभी, because 3 kg और 300 grams में बहुत फ़र्क है, मतलब. ठीक है. So yeah, that happened, and then he said that you will get a call and congratulations and welcome back. He okay. I left home, but I was not really happy till the end because मेरे को certain things HR के साथ discuss करने थे, and this time surprisingly I don't know, they have changed the hiring system or something like that, but when I went there, जब हो गया था फर्स्ट टाइम मैं जब गई थी, तभी हमको एक हैंडबुक मिला था, हमको बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लाइक दैट यू नो गाइड बुक या क्रू हैंडबुक मिलते हैं उसको, वहाँ पे सब दिया रहता है, बताते हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वो रहता है. बट दिस टाइम नथिंग वॉज डॉक्यूमेंटेड और रिटर्न, कुछ भी नहीं था, मेल वेल कुछ नहीं था. HR का कॉल आने के बाद सब होने वाला था. एंड या दिस इज़ वॉट हैपेंड, एंड आई वेंट होम. मुझे कुछ नहीं मिला, ऑफकोर्स आई वेंट एम्प्टी हैंड होम, एंड देन दे सेड कि आपको कॉल आएगा HR का, एंड फर्दर थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड देयर. सो आई वॉज लाइक ठीक है. देन आई वेंट होम, एंड आई थिंक आफ्टर अ वीक एंड हाफ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR, एंड देन शी सेड, it's not a very good story guys आगे, so don't be surprised. Again that this is Mansi. I said yes, and what then she asked me how many years experience do you have. I said 3 years. So then she's like okay, no problem, and then she said we are scheduling your medicals on Friday. Sorry, we are scheduling your HR round. So HR round face to face ऑनलाइन होने वाला था, सॉरी वीडियो कॉल होने वाला था. देन आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल ऑन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एवरीथिंग लाइक दैट. एंड देन अगेन थोड़े टाइम के बाद लाइक अराउंड 4 PM मुझे उनका कॉल आया, एंड अराउंड 6:30 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर HR. आई थिंक ये HR ने उसको बोला है कि ये एक्सपीरियंस है, शी इज़ नॉट अ फ्रेशर. देन शी टोल्ड मी दैट मानसी, वी आर रियली सॉरी, वी आर नॉट हायरिंग फॉर एक्सपीरियंस पीपल राइट नाउ. I was like what, why? मतलब I was really disheartened. मतलब I was really looking forward to join Indigo, and then she said if you want to become a crew or if you want to get back, we have a position open for lead in ATR. ATR अभी वो छोटा एयरक्राफ्ट है पंखे वाला, जिसमें 2 ही क्रू होते हैं. This is for your reference. I have nothing against ATR aircraft. It is the aircraft of course, but मेरा experience Airbus में था for 3 years, and 3 years 3 months, and I was like, it's just I couldn't felt, it didn't feel right. मतलब मुझे नहीं करना था
to be very honest. So I told her that, you know, is it not possible for me to join as in on Airbus? I will join as a fresher as well, I have no problem. She said no, we are not. And then I said okay, no worries. मैंने उसको बोला कि अब मैंने उसको रिजेक्ट नहीं बोला कि मैं नहीं करूँ, मैंने बोला let me think on it and then I will get she said okay, I'll give you a call back next week. So I was like fine. Then उन्होंने मुझे वापस कॉल किया and then she said, you know, कि क्या है मानसी, मतलब she called me, she said have you spoken before? So like, yes ma'am. So I said I'm experienced and I have finished my 2 recurrence and so she said again, she said the same thing that we are hiring for lead ATR. I said no ma'am, I'm really sorry because the thing with ATR aircraft is वहाँ के सारे south bases है like Hyderabad, Bangalore and Cochin and my base I am from Pune. So Airbus में कैसा है ना, if I become a crew on Airbus, even if I go to different base I can always come back to Pune or I can at least get a Mumbai base, मतलब जो मेरे घर के पास होगा. But if I become crew on ATR, I know that I'll never come back to Pune or Mumbai because they don't have bases there. So और मुझे मेन थिंग मुझे ये था कि मैंने एयरबस पे फ्लाई किया जो बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसमें 4 क्रू होते हैं, मैंने कभी ATR फ्लाई नहीं किया और मुझे अलग से ट्रेनिंग और ये सब वो सब. सो आई सेड नो मैम, आई एम रियली सॉरी. मैंने उनको बोला भी कि आई यू हायर मी एज अ फ्रेशर, आई हैव नो प्रॉब्लम ये वो, बट शी स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड नो. एंड देन आई टोल्ड हर दैट ओके लीड का आएगा ओपनिंग. देन शी सेड आएगा बट वी आर नॉट श्योर कब आएगा, मे बी 1-2 months. आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, आई विल वेट. दैन वॉक इन ही करना पड़ेगा जब वेन एवर यू नो ओपनिंग्स कम और रिक्रूटमेंट होता है तभी. सो या दैट वॉज द एंड ऑफ इट. कुछ नहीं हुआ उसके आगे. आई वो केप्ट वर्किंग माई करंट जॉब एंड आई वेंट फॉर एयर इंडिया इंटरव्यू. It was not in my destiny to get back to Indigo that time or get back to aviation that time, but certain things which happened which I didn't really appreciate, but it's okay, it's life. Nothing bad happened after that. I still have a job and I'm still working, but it's just that if they would have given me opportunity अच्छा होता. मतलब I had very good record, I never misbehaved, I never had any complaints, I never had any sorts of, you know, deviations or anything. मतलब so I would say they lost on a good efficient crew, but it's okay, they have lots of people applying for and I think they were looking only for freshers. उनको experience नहीं hire करना है because of XYZ reasons I don't want to get into, but yeah, that was the story. Let me just take it off, थोड़ा light कम हो गया है. So yeah guys, that was it. Thank you so much for listening to my crap and good experience as well. I always love Indigo. I'm always gonna love Indigo. मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा because it's my first airline, it's my first job. Yo, thank you so much once again and I hope you guys have watched my other videos as well. I have planned so many good content and I'm hoping to post it very soon. So yeah, till then please share this video with your friends and family, like this video, please subscribe to my channel and thank you so much for showing the same love and support till now, and I'm gonna see you guys soon in my next video. Thank you, bye bye.